children, let us continue with our next topic, double fertilization of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. Double fertilization is a unique event in flowering plants. It occurs only in angiosperms in the plant kingdom. Pollen grains, they fall on the stigma, pollen tubes, they germinate, enters through the style and then in the ovary. Here it fuses with the egg cells. So in the double fertilization, and one male gamete fuses with egg cell to form zygote. Male gamete is haploid, egg cell is haploid, zygote becomes diploid. This process is called syngamy. Then second male gamete, two male gametes are formed. Second male gamete fuses with two polar nuclei present in the center of the central cell, and then it forms primary endosperm nucleus, which is known as triple fusion. Both syngamy and triple fusion collectively known as double fertilization. So double fertilization हम दोनों processes को इकट्ठा कहते हैं, syngamy plus triple fusion. This is very important. Here you see that primary endosperm nucleus nature is triploid because one haploid male gamete fuses with two polar nuclei, two haploid polar nuclei. So there is triple fusion. तीन सेल फ्यूज कर रहे हैं तो ये तीन न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं तो ये आ गए ट्रिप्लॉइड नेचर का. इसके बाद ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में है. फिर भी जैसे मैंने आपको बता देती हूँ कि जाइगोट में माइटोसिस से एम्ब्रियो बनना है. बिकॉज माइटोसिस से बनना है, नेचर ऑफ एम्ब्रियो इज आल्सो डिप्लॉइड, नेचर ऑफ जाइगोट इज डिप्लॉइड. Or primary endosperm nucleus that also undergo mitosis and it forms a endosperm, that is a nutritive tissue, and its nature is triploid. So this is quite important. Double fertilization. Two male gametes from the pollen tube enter into the synergid. One male gamete fuses with the egg, that is syngamy. Second male gamete fuses with the two polar nuclei, and this is known as the triple fusion. Both are known as the double fertilization. What are the results of fertilization? Zygote and PEN, primary endosperm nucleus, that is the triploid. तो ये दो इसके end product हैं. Then fertilization के बाद हम आते हैं post fertilization events. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में एक तो अभी हमने दो डिस्कस किए, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म जो PEN से एंडोस्पर्म बनना. सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जाइगोट से एम्ब्रियो बनना. मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड्स एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवरी इनटू द फ्रूट. देन फर्स्ट एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म डेवलपमेंट precedes embryo development. Again the question is, हमेशा ये एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले ही क्यों होती है? Most of the zygotes they divide to form embryo only after a certain amount of endosperm is formed. This is an adaptation so that at least the growing embryo it gets food, assured nutrition to the developing embryo. तीन मेथड है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के, न्यूक्लियर, सेलुलर, हेलोबियल. न्यूक्लियर मीन्स कि PEN divides mitotically, form many nuclei without cell membrane division, means cytokinesis नहीं होता. और सिर्फ न्यूक्लियस न्यूक्लियाई बहुत सारे बन जाते हैं. सो दिस इज द फ्री न्यूक्लियर. और कई बार क्या होता है कि फ्री न्यूक्लियर के बाद सेल वॉल बननी शुरू हो जाती है. देन इट बिकम्स द सेलुलर एंडोस्पर्म. हेलोबियल जो नहीं है आपके, लेकिन फिर भी जस्ट मैं बता रही हूँ कि हेलोबियल में क्या है कि फर्स्ट वॉल फॉर्मेशन अकर्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ टू न्यूक्लियाई. फिर एक सेल में सेलुलर कंटिन्यू हो जाती है और एक सेल में फ्री न्यूक्लियर एम्ब्रियो डेवलपमेंट
इकट्ठी होती है. द मोस्ट कॉमन एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज फ्री न्यूक्लियर टाइप. तो अलग अलग स्टेजेस हो सकती हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट में. जैसे द एग्जांपल कोकोनट, हम कोकोनट कहते हैं कि जो कोकोनट का जो पानी होता है, कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट, दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है. और जो वाइट पोर्शन होता है जो हम खाते हैं, दैट इज द, यानी कि कर्नल, वाइट कर्नल, दैट इज अ सेलुलर एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म जो है, yes, that it may be completely consumed, utilized by the embryo. तो हो सकता है कि जब बाद में सीड बनता है तो उसमें एंडोस्पर्म नहीं बचता है, तो हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड. और अगर ये प्रेजेंट है बाद में, देन इट इज द एल्ब्यूमिनस सीड. सो नॉन एंडोस्पर्मिक डजंट मीन कि उसमें एंडोस्पर्म नहीं था, इट इज कंज्यूम्ड. एंड कईयों में जो रह जाता है, दैट इज द एल्ब्यूमिनस एंडोस्पर्म. So here then next is the development of the embryo. तो जैसा कि हमने किया embryogenesis, formation of embryo. Embryogenesis occur before small amount of endosperm is formed. तो ये हमारा एम्ब्रियो सैक है. यहाँ पे 3 जो थे साइनर्जिड्स, बीच वाला जो एग सेल था वो बन गया जाइगोट, है ना, आफ्टर अ सिनगैमी. और ये पूरा बड़ा सेल क्या आया था, सेंट्रल सेल. इसके जो पोलर न्यूक्लियाई थे ये फ्यूज हो गए सेकेंड मेल गैमीट के साथ और इसको बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. अब ये जो है डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल, जो सेंट्रल सेल था, अब इसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन के हम इसको कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. सो बिकॉज वी आर कंसंट्रेटिंग ओनली ऑन द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, तो हम सिर्फ जाइगोट के ऊपर आते हैं कि ये जाइगोट एट जो है इट डिवाइड्स, इट गिव राइज टू जो इसके डेवलपमेंट हैं, जनरली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, दे आर सिमिलर इन बोथ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट. बाद में जो मोनोकॉट डाइकॉट का एम्ब्रियो स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग है, बट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दे आर सिमिलर. तो हम एक ही ये कर रहे हैं. जाइगोट इट गिव राइज टू प्रो एम्ब्रियो. तो जाइगोट ये पहले 2 सेल बन गए, फिर एक सेल जो ऊपर रह गया बेसल, और बाकी सेल्स ये फिर डिवाइड होके, दिस इज कॉल्ड द सस्पेंसर. और ये नीचे वाला सेल जो है दैट फॉर्म्स द एम्ब्रियो प्रॉपर. एक्चुअली सस्पेंसर क्या करता है, उसको जस्ट पुश करता है. जाइगोट यहाँ है, फूड यहाँ है, तो इसको पुश कर रहा है टूवर्ड्स द एंडोस्पर्म. तो सस्पेंसर जस्ट पुशेस द एंडोस्पर्म, और फिर जो लास्ट वाला सेल होता है इट अंडरगो डिविजन्स इन मेनी डायरेक्शंस एंड देन इट फॉर्म द एम्ब्रियो. तो एम्ब्रियो पहले ग्लोबुलर, गोला ये ऐसे बन जा रहा है ग्लोबुलर, फिर यही एम्ब्रियो चेंज हो जाता है थोड़ा सा इसकी शेप, देन इट इज heart-shaped embryo, and here it is a mature embryo because it is a dicot, so 2 cotyledons and this plumule radicle is there. This portion of the embryonal axis above the level of cotyledon is called epicotyle. This terminates into the plumule. So this is the embryonal axis की एक टिप पे plumule, दूसरी टिप पे आ गया हमारा radicle. Plumule is a future shoot and radicle is the future root. So embryo of the monocots, उनकी development same है, but that has only a one cotyledon, and this single cotyledon is known as scutellum. And embryo, it just detail है ये थोड़ी सी, it starts after certain endosperm formation. Zygote divides mitotically from pro-embryo, then it becomes globular and heart-shaped. Then just see the diagram of the monocot. So this is the monocot embryo.
टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो दैट वी हैव सीन कि उसमें 2 कॉटिलिडन, उसकी हमने डेवलपमेंट देखी है. ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ग्रास. Grass, you know, it is a monocot. Here only one cotyledon. This is the cotyledon. This is known as the scutellum. Embryonal axis. Embryonal axis की नीचे वाली टिप रेडिकल, ऊपर वाली टिप that is known as the plumule. अब एक चीज इसमें और एक्स्ट्रा है कि here radical and plumule, they are covered by shoot apex, that is a plumule. They are covered by coverings. Here covering of this radical, that is known as coleorhiza. This is a coleorhiza and plumule की covering को हम कहते हैं coleopatile. So coleopatile, coleorhiza are there, and then only one cotyledon and scutellum is present. So next time we will discuss the structure of seed. Thank you.